गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी साथ में बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So this is a verse from Srimad Bhagavatam. Seventh canto, 5th chapter, verse number 5. 7.5.5. Tatsādhu manne asurvarya dehinam sada samudvignadiyam asagrahat hitva papam grihanandhakopam vanam gato yat harimāśrayet. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prahlad Maharaj replied, O best of the Asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest. More clearly, one should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Purport: Hiranyakashipu thought that Prahlad, being nothing but a small boy with no actual experience, might reply with something pleasing but nothing practical. Prahlad Maharaj, however, being an exalted devotee, had acquired all the qualities of education. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana. One who has unflinching devotional faith in Krishna consciousness manifests all good qualities of Krishna and the demigods. However, he who has no devotion to the Supreme Personality of Godhead has no good qualifications, because he is engaged by mental conception of material existence, which is the external feature of the Lord. So-called educated philosophers and scientists who are simply on the mental platform cannot distinguish between what is actually Sat, eternal, and what is Asat, temporary. The Vedic injunction is Asato Ma Jyotirgama. Everyone should give up the platform of temporary existence and approach the eternal platform. The soul is eternal, and topics concerning the eternal soul are actually knowledge. Elsewhere it is said, those who are attached to the bodily conception of life and who thus stick to life as grihastha or householder on the platform of material sense enjoyment cannot see the welfare of the eternal soul. Prahlad Maharaj confirmed this by saying that if one wants success in life, he should immediately understand from the right source what is his real interest and how he should hold his life in spiritual consciousness. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है आज के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। थोड़ी देर में हो जाएगा, दौड़ के आया। हरे कृष्ण। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आपका कीमती समय आप निकाल कर आए हैं और भागवत की कक्षा में।
यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज थोड़ा सा टाइम चेंज करने वाले हैं क्योंकि कल नरसिंह चतुर्दशी है। तो आज हम लोग अगले 20-25 मिनट भगवान नरसिंह देव के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रहलाद महाराज के बारे में जानेंगे। तो आप सबको पता रहेगा, ये श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में कथा आती है प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की। 7वें स्कंद के द्वितीय अध्याय से प्रसंग प्रारंभ होता है। आपको पता रहेगा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष करके दो असुर थे। दोनों भाई भाई थे और दोनों एक्चुअली कश्यप और दिति के पुत्र हैं और उनके जन्म का प्रसंग भागवत के तृतीय स्कंद में दिया गया है। उनका जन्म किस अवस्था में हुआ और इसलिए वो कैसे असुर बन गए। उसके तत्पश्चात 7वें स्कंद में इनका वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज की कथा युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं किस तरह से भगवान हर किसी का ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे वर्णन करते समय सबसे पहला वर्णन आता है हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष की मौत का। हिरण्याक्ष, इसका वध किसने किया था? भगवान वराहदेव ने। वो भी एक विष्णु के अवतार है। तो 7वें स्कंद के इस शुरुआत के प्रसंगों में ऐसा सीन है, हिरण्यकशिपु इसको और इनके परिवार को दुख हो गया है क्योंकि हिरण्याक्ष क्या हो गया? मर गया। वराहदेव ने उसे मार दिया। तो हिरण्यकशिपु अपने परिवार के लोगों को समझाते हैं कि आत्मा कैसे सनातन है। असुर को भी मालूम रहता है आत्मा सनातन है। जीवोनिष्ठ कोर्स कराते हैं वो अपने पूरे फैमिली का, बताते हैं कि आत्मा किस तरह से सनातन है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और इनके कथा का प्रारंभ बताते बताते हिरण्यकशिपु एक्चुअली उनको एक राजा का वृत्तांत बताते हैं। सुयज्ञ करके एक राजा थे, सुयज्ञ। एक बार युद्ध भूमि में वो मर गए। कुशीनगर नाम का एक जगह था। तो उनका जब मौत हो गया तो उनकी रानी क्या करने लगी? विलाप करने लगी युद्ध भूमि में और मृतदेह को छोड़ नहीं रही थी। तो उस समय यमराज एक छोटे बालक का रूप लेकर आ गए वहां पर और कहने लगे कि आप इतना क्यों रो रहे हो? हमें देखो, हम छोटे से बालक हैं, संसार में कितना दुख है, हमारा तो कोई भी नहीं है, फिर भी हमें कोई दुख नहीं है। यमराज बता रहे उन रानियों को। और फिर यमराज पूरा वहाँ पे एक लंबा डिस्कशन है, बताते कि किस तरह से आत्मा सनातन है। जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से इस संसार में जन्म लेता है, उसके हिसाब से उसकी मृत्यु होती है और फिर रानियां उस देह को छोड़ देती है। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु इसको इस समय जीवनिष्ठ कोर्स करा रहे हैं। हिरण्याक्ष की पत्नी और अपनी माता और बाकी जितने भी भाई बंधु थे, तो सब लोग मुझे सुनते हैं। यहाँ तक हिरण्यकशिपु बताते हैं कि किस प्रकार जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में जब जाते हैं तो होटल में हमें पता नहीं है कौन कौन आया है, कौन से देश से आया है, कौन से गांव से आया है, कौन से घर से आया है। 1-2 घंटे के लिए साथ में बैठते हैं, भोजन पाते हैं, जो बिल भरता है निकल जाता है, नहीं भरता है अंदर ही रहता है। जो बिल भरते हैं वो निकल जाते हैं अपने अपने दिशाओं की तरफ, फिर वापस जिंदगी में कभी मिलते नहीं मिलते किसी को। उसी प्रकार संसार है। हम लोग एक साथ आते हैं कुछ समय के लिए, घर परिवार में कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनती है, कोई बच्चे बनते हैं, कोई घर के नौकर चाकर बनते हैं। और जब हमारा समय अवधि पूरा होता है, हम सब लोग अपनी अपनी दिशा की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय के लिए हमारा मोह रहता है, ये मेरा है, लेकिन कुछ समय के तत्पश्चात वो मोह समय समाप्त कर देता है। तो हिरण्यकशिपु बता रहा है कि चिंता मत करो,
समय के साथ सब अलग हो जाएंगे। अभी हम साथ में हैं तो मिलकर हम क्या करते हैं, हमारे भाई का जो हत्यारा है विष्णु, उसको सजा देते हैं। इवेंचुअली यही बोलता है वो, इतना आत्म साक्षात्कार ज्ञान देने के बाद भी। इसलिए असुर लोग कितना भी विद्वत्ता प्राप्त करे, उनका कैरेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि विद्वत्ता से काम नहीं बनता है, कैरेक्टर और नम्रता से काम बनता है। तो उसके तत्पश्चात तीसरे अध्याय में हिरण्यकशिपु, उनका वृत्तांत आता है कि वो तपस्या करने के लिए निकलते हैं। बड़ा गंभीर तपस्या करते हैं हिरण्यकशिपु वन में जाकर। वो आपने चित्र देखा होगा सप्तम स्कंद के प्रथम, है ना, सप्तम स्कंद के वो पिक्चर प्लेट्स आते हैं, वहाँ पे हिरण्यकशिपु एक पैर पे खड़े हैं और हाथ ऐसा ऊपर किया है, और कई कई सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। इतनी तपस्या करते हैं कि उनके शरीर से तेज निकलता है, हीट जो अभी निकल रहा है। हम लोग इतने हीट से परेशान हो जाते हैं, आधा घंटा पंखा ना चले तो क्या हो जाए। तो पूरे विश्व भर में उनके शरीर से निकलने वाला तेज है, गर्मी उससे पूरा ब्रह्मांड तप्त हो जाता है। सारे जीव जंतु देवी देवता सब परेशान हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे पता है, चिंता मत करो। ये द्वितीय कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है मुझसे वरदान मांगने के लिए, इसकी वजह से। तो लेकिन जब साक्षात ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं, और तब तक उनका शरीर पूरा मांस हड्डी से गायब हो चुका था, केवल हड्डी था। मतलब इतना तपस्या किया, खाना पीना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। ब्रह्मा जी अपने कमंडल में से जल लेते हैं और उसके ऊपर मंत्रित करके छिड़कते हैं। तो हिरण्यकशिपु जागृत होता है उसमें से, आत्मा अंदर ही बैठा हुआ है। और हिरण्यकशिपु तुरंत ब्रह्मा जी को देखकर उसकी आंखों से आंसू आते हैं। ब्रह्मा जी को दंडवत लगाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं वत्स क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकशिपु कहता है मुझे अमर बना दो। सारे असुर लोग क्या होना चाहते हैं? अमर होना चाहते हैं। यहाँ बंगाल में भी बहुत सारे असुर लोग हैं, वो भी अमर होना चाहते हैं, और हम भी सब असुर हैं, हम भी अमर होना चाहते हैं। फ्री में हमको क्या चाहिए? टिकट चाहिए स्वर्ग में जाने का। फ्री में हमें टिकट चाहिए भगवत धाम जाने का। किसी को भी कुछ भी टिकट काटना नहीं है, जबकि संसार का नियम क्या है? बिना टिकट काटे किसी भी हॉल में आप इस हॉल में आए, यहाँ भी टिकट काट के आए हैं। कौन सा टिकट काटा आपने? हाँ, बस का। बस का टिकट तो काटा है, लेकिन इससे भी जबरदस्त बड़ा टिकट क्या काटा है आपने? मुक्ति का टिकट काटा है, राइट? उसके लिए आपने आज सिनेमा त्याग दिया होगा, कोई पॉलिटिकल रैली अभी तो खत्म हो गई, कोई नेतागण आए होंगे, उनको देखना छोड़कर आप इधर आ गए। कोई इस समय होटल जाने वाला था अपने अज्ञात बंधुओं से मिलने के लिए। इस तरह से हम लोग नाना प्रकार के विचित्र विचित्र हरकतें कर रहे हैं इस समय, किस लिए? अमर होने के लिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं वत्स मैं खुद अमर नहीं हूं, तो आपको कैसे अमर बनाऊं? तो हिरण्यकशिपु सोचता है शायद मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो ब्रह्मा जी। सबको ऐसा लगता है, जैसे रावण को भी लगा था शायद मेरे साथ घोटाला हो रहा है, कुछ तो मेरे को गड़बड़ लगता है, मुझे लगता है दे नहीं रहे मुझे पूरा पैसा। तो वो सोचता है कि मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। तो आपने कथा प्रसंग देखा है, वो बोलता है तो अच्छा एक बात कहूँ मैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ बोलो। अच्छा तो मुझे वरदान दो कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। अस्त्र शस्त्र मतलब जो भी एग्जिस्टिंग है, अभी पहले थे और फ्यूचर में आने वाले, किसी से मरूंगा नहीं मैं किसी भी इंसान देवता, इसमें इंसान पकड़ लिया था उसने, कोई भी जीव 84 लाख योनियों में आया है और देवताओं में है, किसी से भी मरूंगा नहीं।
तथास्तु। ना बस के अंदर ना बस के बाहर, ना फ्लाइट के अंदर ना फ्लाइट के बाहर, ना ट्रेन के ऊपर ना नीचे, ना गाड़ी में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना बिल्डिंग में, ना 2 BHK ना 3 BHK ना 1 RK ना झोपड़ी ना महल, कहीं नहीं मरूंगा मैं, ना हवा पानी कहीं भी नहीं मरूंगा, तथास्तु। ना दिन में ना रात में, सब कुछ मांग लिया वो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। उसको लगा अभी मैं बड़ा एक्सपर्ट, मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मुझसे बड़ा पंडित कौन हो सकता है, सब कुछ जानता हूँ मैं कैसे पैसा बराबर वसूल करने का। तो हम लोग संसार में ही सोचते हैं कि कहीं मार्केट में आप कभी सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि अच्छा ये सब्जी कितने का, दुकानदार बोलता है 60 रुपये पाव। तो कितना हो गया, 240 रुपये किलो ना। आप बोलते हैं अरे नहीं ज़्यादा महंगा है, थोड़ा कम। अच्छा ठीक है, आपके लिए 10 रुपये कम। आपको लगता है 10 रुपये सचमुच कम किया उसने, आप खरीद लेते हैं 50 रुपया। आपको लगता है कि आपने उसको बराबर लपेट लिया, आपको नहीं पता उसने आपके इसमें से कितना प्रॉफिट निकाला है। संसार में इस तरह से हर कोई सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा भोग ले रहा हूँ। इस छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो या अधिकारी हो या घर गृहस्थी कोई भी हो, हम सब सोचते हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ सामने वाले को ठग के, लेकिन वास्तव में हम ठगे जा रहे हैं। हमें पता नहीं कि हम किस तरह से ठगे जा रहे हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु, उसको लगता है कि मैं क्या हो गया, अमर हो गया, और मैं अभी पूरे विश्व के ऊपर क्या करूंगा, राज्य करूंगा। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेता है, ब्रह्मा जी वहां से निकल जाते हैं। हिरण्यकशिपु प्रकट होता है और अपने घर में जाकर अपने मित्रों से, सगे संबंधी सबसे मिलता है, और सबसे मिलने के तत्पश्चात बोलता है कि सुनो, अभी हमें बदला लेना है। किससे? मेरे भाई हिरण्याक्ष कितना बड़ा सुसंस्कृत था, कितना बड़ा विद्वान था, सदाचारी था, गुणवान था। मेरा भाई इतना अच्छा, कितने लोक कल्याण के कार्य किए उसने, और उसको विष्णु ने मार दिया। अभी हमें विष्णु को मारना है। अच्छा, विष्णु को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? विष्णु की जो जड़ है वो क्या है? ब्राह्मण संस्कृति, गाय। विष्णु का पालन किससे होता है? ब्राह्मण द्वारा। ये कथा कीर्तन करते हैं ना, इसके द्वारा होता है। तो ब्राह्मण संस्कृति को क्या करो? नष्ट करो। तो उसने अपना कैंपेन चलाया जो आज चलता है पूरे संसार में। जो असुर लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान की जहाँ जहाँ भक्ति हो रही वहां पे आके पथराव करेंगे, नहीं भक्ति मत करो आप, हमारे भगवान श्रेष्ठ है। आपके भगवान क्या है? ही नहीं। और जब तक आप हमारे भगवान को नहीं मानोगे तब तक आप नास्तिक हो। तो हिरण्यकशिपु के फॉलोअर लोगों ने हिरण्यकशिपु को भगवान बना दिया था, और वास्तविक हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार पे राज्य कर लिया। देवताओं को कंट्रोल करके देवताओं के आसन में जाकर बैठ गए, जैसे रावण बैठा था। क्योंकि किसी से मरने वाला नहीं था, ना देवताओं से, ना असुर से, ना किसी से, ना दिन ना रात, ना किसी ने अस्त्र शस्त्र से। इस प्रकार पूरे विश्व में उसने हाहाकार मचा दिया, सब जगह उत्पात तांडव। और जैसे रावण सोच रहा था कि स्वर्ग में लोग बिना पुण्य करके आएंगे, पाप किया तो भी चलेगा, स्वर्ग में एंट्री मिलेगा उसको। यानी कि प्रकृति के जो नियम है संसार में भगवान ने बनाए हुए कर्म फल के हमारे, उन सबको उल्टा पुल्टा कर दिया। इस तरह से जब सारे जीव त्रस्त हो गए, सारे जीव परेशान हो गए, तो सब भगवान विष्णु के पास गए ब्रह्मा जी के साथ मिलकर, और भगवान से प्रार्थना है कि तब भगवान प्रकट होकर बोले, आप चिंता मत कीजिए, ये ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है, वैष्णव को परेशान कर रहा है, और इसकी वजह से बहुत ही जल्दी इसका विनाश होगा। और स्पेशली तब ये अपने पुत्र प्रहलाद इसको टॉर्चर करेगा, जो कि महाभागवत है। तथास्तु करके भगवान को भेज देते हैं। उसके तत्पश्चात जब 5वां अध्याय चालू होता है तो प्रहलाद महाराज के चरित्र के बारे में वर्णन आता है। देखिए, कथा है हिरण्यकशिपु, नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज। एक है हीरो, एक है हीरोइन।
एक है विलन। तो इसमें हीरो कौन है? हीरो कौन है? हाँ? लेकिन यहाँ पे हीरो कौन है? प्रहलाद। भगवान अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने भक्तों को हीरो बना देते हैं और खुद हीरोइन बन के बैकग्राउंड में बैठ गए। इन द सेंस कि भगवान भी हीरो ही है। और जब ये कथा प्रसंग लंबा है भागवत में, 9-10 चैप्टर है इसमें, हम तो इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद जो कि 5 साल का था, उनको कोई भी पिता अपने पुत्र को क्या करना चाहता है? शिक्षा देना चाहता है, राइट? पढ़ाई करवाना चाहता है ताकि वो अच्छा सा क्या बने, बहुत जबरदस्त बड़ा भोगवती बने। ये तो प्रॉब्लम है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई कराना चाहते हैं ताकि वो पढ़ाई लिख के अच्छा पैसा कमाए और एंजॉय करे। और जब वो कहीं जाएगा बाहर विदेश में तो हमें लगता है जीवन सार्थक हो गया हमारा। तो उधर हमारे वो एक जगह जाता हूँ प्रचार के लिए, वहाँ पे एक वक्त है, तो एक दिन प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो आई माता जी बोली, मेरा बेटा लंदन में है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, आपको बता रही हूँ। मैं बोला अच्छी बात है। आपको उसको माता जी बाद में 16 काउंटर बन गई, वो समझ में आया उसको कि क्या जीवन में तो ऐसा नहीं, आप कहीं जा सकते हैं आप कहीं भी, लेकिन ये ना सोचे कि जीवन में भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा लोग तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं भाई, और हमसे अच्छा करते हैं। 84 लाख योनियों में, प्रभुपाद का लेक्चर सुनाते थे, प्रभुपाद कहते हैं 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख मनुष्य की जातियां हैं, 80 लाख पशुओं की है। उसमें से कोई भी इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कारपेंटर नहीं है, कंडक्टर नहीं है, बस ड्राइवर नहीं है, कोई भी कुछ काम धंधा नहीं करता है, टाई सूट पहन के ऑफिस नहीं जाता है, लेकिन उसका खाना उसको मिल जाता है। मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? तो 80 लाख जो योनियां हैं 84 में से 80 लाख बराबर खा पी रही हैं। किसी को डायबिटीज नहीं होता है, किसी को कैंसर नहीं होता है, ना कोई सुसाइड करता है। कभी सुना है? एक कुत्ते ने सुसाइड किया, अरे यार वो कुतिया ने मुझे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मेरा दिल दुख गया आज, आई एम नाउ एंडिंग माय लाइफ, इनफ इज इनफ। कभी बिल्ली को सुना है? कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये कभी कोई कौवा उड़ते उड़ते आया, बोला आज बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी में बैठो क्या अंदर? खिड़की में आके बोला वो आपके, उसको कभी गर्मी नहीं होती है, सर्दी नहीं होती है, जो होती है अपने हिसाब से टॉयलेट कर लेता है, जहाँ बैठना है बैठता है, जहाँ उठना है उठता है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि 80 लाख प्रजातियां उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 4 लाख में बड़ा प्रॉब्लम है। तो खास करके जो शहरों में रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये चाह रहे थे हिरण्यकशिपु की मेरा पुत्र भी क्या करे, पढ़ाई लिख करके एकदम मस्त लंदन ऑस्ट्रेलिया जाके घूम करके आ जाए। तो इनके जो गुरु थे असुरों के, उनका नाम था शुक्राचार्य। उनके भी पुत्र थे। अभी क्या है, बच्चे बच्चे को पढ़ाएंगे ना, बड़े बड़ों को पढ़ाएंगे। अभी हिरण्यकशिपु के गुरु थे, मैं कभी यूज नहीं करता, आज बहुत समय के बाद यूज कर रहा हूँ। अगली बार लगा देंगे उधर, नेक्स्ट टाइम। कहाँ गए हमारे कोऑर्डिनेटर ने? तो तकलीफ मेरे से ज्यादा पब्लिक को होती है। अगली बार इधर पंखे के नीचे लगा देना टेबल, मतलब कुर्सी वहां पे और थोड़ा पीछे रहेगा। अरे तो मेरा पसीना देख के इनको पसीना आ जाएगा। तो ये इन शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमरक। आपके बड़ा एकदम चरित्रवान नाम है, षंड और अमरक। हिरण्यकशिपु ने कहा सुनो इधर आओ षंड अमरक, देखो मेरा बेटा है ना प्रहलाद, 5 साल का हो गया है, अभी इसको स्कूल में डालना है। क्या बोलते हैं उसको? जूनियर केजी सीनियर केजी क्या बोलते हैं? आंगनवाड़ी बोलते हैं ना।
हमारी भाषा में बालवाड़ी बोलते हैं, ये पता नहीं आजकल क्या क्या अंग्रेजी में आ गया है, नर्सरी। हमारा सिंपल था आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में जाओ, खेल कूद के आ जाओ बिना पैसे का। आजकल तो आपका नर्सरी विरसरी नाम से नाम इंग्लिश देते हैं और अच्छा खासा फीस वसूल करते हैं। 1 लाख रुपया बच्चे का आमदनी भी नहीं हो रहा है, उसका चालू इन्वेस्टमेंट चालू। हमारा जीवन अच्छा था। मैं तो पीजी तक फ्री में पढ़ाई किया, एटलीस्ट डिग्री तक। पीजी में थोड़ा सा खर्च हुआ। जितना आधुनिकता बढ़ेगा उतना कष्ट और क्लेश बढ़ते जाएगा। इतना पैसा लगाने के बाद बच्चा बाद में बोलता है मैं डॉक्टर नहीं बनेगा, मैं इंजीनियर नहीं बनेगा, मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ। फिर आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर को एसी भी ठंडा नहीं कर पाता है। वैसा टेम्परेचर बढ़ेगा अभी इधर किसका, हिरण्यकशिपु का। तो इसने भेज दिया स्कूल में पढ़ाई करने के लिए इनको। शंडा अमर ये दोनों क्या करते थे, प्रहलाद को शिक्षा देते थे। क्या शिक्षा देते थे? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पैसा जमा करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा जमा करके इंद्र तृप्ति करना है। इसके लिए पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए। कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो ये काम कर दो, ये काम नहीं किया तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द, तुम्हारा ये खत्म वो खत्म। तो ये इनको पढ़ा देते पॉलिटिक्स क्या होता है, राइट। ये पढ़ा देते इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, सेल्स ग्रेटिफिकेशन कैसे करना है। और इनका पढ़ाई चल रहा था। प्रहलाद लेकिन ये सब नहीं पढ़ते थे। वो कहते थे ठीक है आप पढ़ाते रहो, लेकिन प्रहलाद अपने मन ही मन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का स्मरण करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रहलाद महाराज इनको ये शंडा और अमर का हिरण्यकश्यप ने इनको बुला लिया। पिता जानना चाहते हैं ना कभी कभी मेरा बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है, पढ़ रहा है, ठीक से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। और पूछताछ करना चाहते हैं कि बच्चा मेरा ठीक से A, B, C वो सब सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो पूछ लेता हूँ मैं प्रहलाद को। तो बुलाया गया, भरी सभा में बैठा था हिरण्यकश्यप भी एकदम है ना, शराब की बोतल लेकर। पिता इतना संस्कारी है, नशे में धुत एकदम। प्रहलाद महाराज आ गए वहां पे। प्रहलाद महाराज को गोद में लिया। कितना भी असुर क्यों ना हो पिता, लेकिन उसका अपने पुत्र पे क्या होता है? प्रेम होता है। और यही प्रेम उसके मुक्ति का कारण बनेगा आगे जाकर। कि इतना बड़ा असुर होने के बाद भी उसने अपने पुत्र के ऊपर प्रेम किया, भले वो प्रेम किसी दूसरे कारण के लिए हो। इस प्रकार पूतना जब भगवान कृष्ण का वध करने के लिए आई थी, तो पूतना ने भी क्या किया, एक क्षण उसने कहा कि मैं दूध पिलाना चाहती हूँ कृष्ण को। भले जहर था उसमें, लेकिन माता का रोल निभाया उसने, भले डुप्लीकेट ही क्यों ना हो। इसीलिए हम लोग जब जप माला उठाते हैं तो हम भी अगर नाटक कर लेंगे थोड़ा जप करने का, भले हमारा जब हमको मालूम है कितना अच्छा है, नाटक करो जप करने का, तो नाटक बहुत काम में आएगा बाद में। और बाहर संसार में आने के नाटकों में भाग लोगे, वो एक नाटक किसी काम में नहीं आएगा। इसीलिए नाटक करना चाहिए रोज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिरण्यकश्यप लेकिन नाटक नहीं कर रहा था, ओरिजिनल। तो उसने बुलाया बच्चों को, गोद में रखा और पप्पी लिया। मेरा बच्चा, अपना माथा सूंघते हैं ना, मेरा सोनू, मेरा गोलू, जो भी रहेगा आपका, मेरी पिंकी, मेरी बंटी, मेरी चिंकी, जो भी रहेगा। और इतना प्रेम से पूछने लगा, प्रहलाद मेरा प्यारा बच्चू, प्रहलाद बेटा आपने स्कूल में जो भी सीख रहे हैं उसमें से सबसे बढ़िया चीज क्या आपको समझ में आ रही, बताइए मुझे। सबसे बेस्ट चीज क्या सीख रहे हो आप? अभी पूछते हैं बच्चों को, बेटा E for, अगर बच्चा उत्तर नहीं देगा तो फिर धड़क। आजकल बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए, तुरंत फोन लगाते हैं 101 पुलिस, पिताजी मेरा शोषण कर रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज। पिताजी भी बेचारे सोचते हैं 10 बार हाथ उठाओगे नहीं। हमारे टाइम में तो हाथ क्या, लकड़ी रहता था बड़ा बड़ा। कई बार तो लकड़ी मेरे सर के ऊपर तोड़ा है पिताजी ने मेरे, वो पतला रहता था ना वो।
2 टुकड़े कराटे। हाँ, कभी कभी कान पकड़ते थे, ऐसा कान, ऐसा लगता था पूरा इधर का कान उठा के उधर उधर रख दिया, उल्टा हो गया कान, सब निचोड़ देते। आजकल तो ऐसा है नहीं। तो ये इस प्रकार जो इतना प्रेम से बोल रहे थे, तो प्रहलाद महाराज जब वो उत्तर देते हैं, वो ये नहीं कहते पिताश्री मैं इकोनॉमिक्स सीख रहा हूँ, पॉलिटिक्स सीख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज कहते हैं जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, तत्साधुवन में असुरवर्य देहि नाम। वो क्या कहते हैं? असुरों में सबसे बड़े, पिताजी को ये नहीं कहते पिताजी, वो कहते हैं वो सबसे बड़े असुर। सदा समुद्विग्न धियम असद्ग्रहात्। वो कहते हैं कि हमेशा जो चिंता से भरा हुआ है, क्यों चिंता से भरा हुआ है? क्योंकि उसने असत वस्तु को ग्रहण कर लिया है। अगर समझो आप क्या जॉब किए, जॉब करते थे आप, अभी भी करते हैं, क्या था आपका जॉब? अकाउंट्स। तो अगर आपको बोला जाए किचन में जाके कुकिंग करो और आपको ये जॉब चेंज कर दिया जाए कुकिंग का, तो डिफिकल्ट जाएगा ना? क्योंकि एक दिन 2 दिन कुकिंग ठीक है, घर में छोटा सा, बोलेंगे 8 घंटा कुकिंग करो, ये कुकिंग करने वाले को बोलेंगे अकाउंटिंग करो, तो दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बेसिकली जो हमारे स्वभाव का नहीं है वो अगर हमने लिया तो हम क्या हो जाते हैं? रेस्टलेस हो जाते हैं, बराबर। उसी प्रकार हम लोग क्या है? हम लोग सत वस्तु है, सनातन है, आत्मा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? असत और सनातन वस्तु का क्या कर रहे हैं? आश्रय ले रहे हैं, जो हमें कभी सुख नहीं पहुंचाने वाली। अगर मैं समझो समुद्र, प्रभुपाद उदाहरण कई बार देते हैं, समुद्र नदी पानी के अंदर मछली क्या करती है? बड़े आनंद से घूमती है। उस मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए और उसको एक लैपटॉप दिया जाए, एक मोबाइल दिया जाए, एक घड़ी, मछली बोलेगी किसी भी काम का नहीं है मेरे, वाटरप्रूफ दे दो पानी के अंदर मैं चलाऊंगी सब, पानी के बाहर में खत्म, बिकॉज मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। उसी प्रकार संसार में हजारों हजारों वस्तुओं का संचय करने के बाद भी हम लोग सुखी नहीं है जब तक हम कृष्ण से अपने संबंधों को नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग किसी भी वस्तु को रजित नहीं कर रहे। आज हम लोग कैमरा यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका कनेक्शन कृष्ण से जुड़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आपके जीवन में ना बहुत सारे क्या है? शून्य है। ये हमारा बहुत बड़ा घर, एक शून्य, बहुत बड़ी नौकरी, दूसरा शून्य, ये बहुत सुंदर शरीर, तीसरा शून्य, बहुत बड़ी विद्वत्व, चौथा शून्य, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, 5वां शून्य। बोले जब तक इसके आगे एक नहीं लगेगा तो सारे जीरो क्या है? 0 0 0 है। 0 into 0 0, 0 minus 0 0, 0 plus 0, कोई भी पैरामीटर यूज करो 0 0 ही रहता है। जब तक उस 0 के इस तरफ एक नहीं आएगा तब तक उसको कुछ भी वैल्यू नहीं, भले कितने भी 0 होने दो। उसे प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारे जीवन में कृष्ण है, वो एक कृष्ण, तो ये सारे 0 को वैल्यू मिलती है, अदरवाइज ये सारे 0 0 ही है। और इसका आपको साक्षात्कार तब आता है जीवन में जब जीवन में हरिबोल होता है। हम बोलते हैं क्यों बॉम्बे आया, मैं गांव में अच्छा था। गांव वाला बोलते हैं मैं बॉम्बे कब जाऊंगा। जो जहाँ है वो खुश नहीं रहता है, सोचता है मैं वहां जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, वो वहां वाला सोचता है मैं यहाँ आऊंगा तो खुश होगा। संसार में कोई भी सुखी नहीं हो सकता जब तक वो भगवान से प्रेम ना करे। इस प्रकार बालक जब तक अपनी माँ के पास नहीं आता तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, भले कितने भी संसार में माँ है उसको मिलने दो, अपनी माँ होती है, राइट। उसी प्रकार भगवान जब तक वो भगवान के पास नहीं आएगा तब तक जीवन में कष्ट भोगते रहेगा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या कहता हूँ? ये जो ऐसे व्यक्ति हित्वा तो पातम गृहांतर कूपम, वो ऐसे जगह पे गिरे हैं, ऐसे कुएं में गिरे हैं जिसमें पानी नहीं है। अगर ऐसा कुआं कभी आपने देखा है जहाँ पानी नहीं है और आपने छलांग मार दिया अंदर, क्या होगा? हड्डी पसली हो जाएगा। अगर पानी भी है और तैरना नहीं आता तभी कूदेंगे तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन स्पेशली जहाँ पानी नहीं है उसमें जंप मारेंगे तो फिनिश। इस सांसारिक जीवन को इस प्रकार गृह अंधकूपम कहा गया है।
ऐसा कुआं जिसमें केवल अंधकार है, इसमें एक बार आपने जंप मार दिया तो वो ना एक अमोघलिका प्रभु का लेक्चर उसमें बोलते हैं जब शादी हो जाती है तो कुएं में खुद ही मार देते हैं, लेकिन पता चलता है कुआं तो अंधेरा, सब जगह अंधेरा है। बोलते कोई है यहाँ पे, कोई है, अंदर से आवाज आती है मैं हूं ना। केवल आप और कौन है? नहीं आप और मैं, बस अभी हमें एक संसार बनाना है, एक घर गृहस्थी बना, अभी तो शुरुआत हुआ है जी। और हम अभी क्या करेंगे? केवल एक दूसरे को देखते रहेंगे, अब कोई है नहीं। कोविड में ऐसा हुआ था, कोविड में एक दूसरे को देख देख के पक गए, बोले यार कब घर से बाहर निकलता हूँ मैं। ये भयानक कुआं है, जब तक हम कृष्ण को अंदर नहीं लाएंगे उस घर के अंदर, तब तक वो अंधकूप बनता रहेगा, अंधकार से भरा हुआ। इस प्रकार जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं बड़ा चिढ़ जाता है हिरण्यकशिपु, क्या ये तुमको सिखाया जा रहा है स्कूल में? बड़ा डांट फटकार लगाता है षंड और अमरक को। षंड अमरक समझ रहे क्या हो गया, हम तो इसको पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ये क्या उटपटांग बातें कर रहा है, हरकतें कर रहा है ये। पिताजी कहते जाओ इसको वापस लेके जाओ, ठीक से पढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। घंटा अमर को उसको वापस लेके जाते हैं, कुछ दिनों तक अच्छा पढ़ाई करवाते हैं। उनको लगता है कि प्रहलाद अभी अच्छा पढ़ाई करेगा। एक्चुअली उसको लेके जाकर साइड में पूछते प्रहलाद ये सब बातें कहाँ से सीखा तुम? तो आपको अच्छा सिखाते हैं, उनको लगता है हम जो पढ़ाते हैं अच्छा है, वो ये फालतू की बातें कहाँ से सीख के आया है ना। वन में चले जाओ, भगवान की भक्ति करो। वन में मतलब प्रभुपाद कहते वृंदावन चले जाओ, बेसिकली मंगलवार के प्रोग्राम में आप, ये वृंदावन है राइट, जहाँ भक्त एक साथ आकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का कथा करते हैं, वो वृंदावन है राइट। तो कुछ समय बीतता है ऐसा, शेंडा अमर को लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है बच्चों का। फिर वापस हिरण्यकशिपु एक दिन बुलाते हैं, बुलाओ मेरे सोनू को बुलाओ, जानना चाहता हूँ कि उसमें तो सुधार हुआ है कि नहीं। वापस प्रहलाद महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज ऐसे चरित्र हैं, उनको कोई द्वेष नहीं है अपने पिता से। पिता अपना काम कर रहे हैं, पुत्र अपना काम कर रहे हैं, हमें ऐसा होना चाहिए घर में। भले कोई आपको अपोज करे हरे कृष्णा चैंटिंग करने के लिए, उनको अपना काम करने दो, आप अपना करते रहो, झगड़ा मत करो किसी से। झगड़ा करने से और काम बिगड़ता है। उनको बोलो आप करते रहो, हम अपना करते रहेंगे। तो जब नेक्स्ट सेकेंड टाइम बुलाते हैं उसको, वापस हिरण्यकशिपु गोद में लेता है, मेरा प्रहलाद मेरा प्रिय पुत्र बालक, पुनः उसके चुम्मा लेते हैं यहाँ पे माथे पे, सूंघते हैं उसको, पूछते हैं बेटा बताओ आपको टीचर लोग क्या पढ़ा रहे हैं, सबसे बेस्ट आपको क्या पसंद है, क्या समझ में आया आपको? इस समय जो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं उससे तो पूरा हरिबोल हरिबोल हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम विष्णु का नाम नहीं लिया था, इस बार विष्णु का नाम लेकर बोलेंगे। वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज जो सबसे बेस्ट चीज मैंने सीखी है वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 अंग बताते हैं कि श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान विष्णु के बारे में भक्ति करना, सुनना, उनको पूजा करना और फाइनली उनको सरेंडर करना, ये सबसे बढ़िया चीज सीखी है मैंने पिताजी पास। जब विष्णु का नाम सुना तो उसका वही पुराना तेज क्रोध जागृत हो गया। और इस बार एक्चुअली हिरण्यकशिपु ज्यादा करके इसको डांट देते, किसको? षंडा अमर को। कभी-कभी आप लोग अपने स्कूल के टीचर को पढ़ाते होंगे, मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है लेकिन फेल होता है बार-बार, ठीक से मार्क्स नहीं लाते, स्कूल में बेकार रह गए, स्कूल में ठीक से पढ़ाते नहीं। हिरण्यकशिपु बुलाते क्या है, तुम लोग पकड़ में पढ़ा मिल जाएगा, षंडा अमर का इतना सैलरी दिया है, रहने के लिए क्वार्टर दिया है तुम लोगों को, पेंशन भी मिलेगा बाद में, इस तरह से पढ़ाते बच्चों को। ये दोनों कंफ्यूज, ये कहाँ से सीख के आता है उटपटांग चीजें, हम तो इसको समझाते नहीं, पढ़ाते नहीं है ना। इसके बाद बोलते ठीक है अभी 5 टाइम और लंबा चलना है ना, इसलिए अभी मारते नहीं है हिरण्यकशिपु। तो ये दोनों षंडा अमर को बोलते हैं कि देखो देखो हम फिर कोशिश करते हैं, हम इसको ठीक से पढ़ाने का प्रयास करते हैं और वापस
पास लेके आएंगे, वापस लेके जाते हैं। फिर वापस इनका चालू होता है प्रहलाद, और बड़ा लंबा डिस्कशन है, बहुत डांटते हैं प्रहलाद को बाद में जाकर। प्रहलाद को कहते हैं कि तुम हमारे पूरे कुल का नाम बर्बाद कर रहे हो, हमारा नाम बर्बाद कर रहे हो। वो कहते हैं कि देखो ठीक से पढ़ाई करो, हम आपको क्या सिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, संसार में कैसे भोग करना है, कैसे ईर्ष्या करनी है लोगों से, कैसे द्वेष करना है, कैसे अपने को जो चाहिए वो हड़पना है, इस तरह से कुछ समय सिखाते हैं। और तत्पश्चात तीसरी बार पुनः प्रहलाद को वापस लाया जाता है हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु पुनः वही पुत्र को अपने गोद में लेता है, मेरा सोनू पप्पी लेता है, उसको लगता है अब तो पक्का सुधरा होगा। तो प्रहलाद क्या आपने बेस्ट सीखा स्कूल में, आपके स्कूल का नाम इतना है ना, आपके बहुत सारे नाम रहते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल और क्या क्या रहता है, माई क्लासेस, जो भी रहेंगे आपके अपने पॉपुलर क्लासेस। तो हमको लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा तो बहुत सीखेगा। हिरण्यकशिपु को लगा था। तीसरी बार जब लेके आते हैं, इस बार कृष्ण का नाम लेते हैं प्रहलाद महाराज। कहते हैं जो बेस्ट चीज मैंने सिखाया ना, बताता हूँ आपको, सुनो। अतिरथ कृष्ण परतो सतो वा मिथोपि पद्यत बृहत् प्रतानाम अदांत गोभिर विशदाम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। कहते कि जिनकी मति कृष्ण में नहीं लगी है, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, अदांत गोभिर विशदाम तमिस्त्रम। कहते कि ये लोग क्या है, अदांत मतलब बेसिकली जिसके सेंसेस कंट्रोल नहीं है, अदांत। वो लोग क्या करें संसार में, जो भौतिकवादी जीवन के प्रति आसक्त हो गए हैं, वो लोग कभी भी किसी के भी उद्देश्य से भक्त नहीं बन सकते। जैसे कि आप, जबरदस्त प्रचार किया उन्होंने, बोले आप जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी घर में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, पिताजी आपको पता नहीं है भक्ति में कितना पावर है। पिताजी बोलते चुप, पिताजी आप बहस मत करो मेरे साथ, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आप। यहाँ पे प्रहलाद ऐसा बहस नहीं करते, बताते हैं उनको। तो कहते हैं कि ये लोग जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रयास से भक्त नहीं बन सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, दे आर जस्ट च्यूइंग द च्यूड। च्यूइंग द च्यूड मतलब जो ऑलरेडी चबा के किसी ने फेंक दिया है, उसको उठा के चबा रहे हैं वापस। समझो किसी ने, आपको गन्ने का जूस देखा होगा ना आपने, तो जूस निकालते हैं, कितनी बार निकलेगा जूस, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार क्या होता है, जूस नहीं धुआं निकलेगा उसमें से, उसको लेकर चबाते हैं। और सांसारिक जीवन हमारा भौतिक जगत में ऐसा है कि हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कई मिलियंस ऑफ टाइम्स को चबा रहे हैं। चबा चबा के थक गए हैं, फिर भी वही चबा रहे हैं वापस। उसमें से जूस खत्म हो गया, हवा भी नहीं उसमें अभी, कंप्लीटली फिनिश्ड। लेकिन उसी चीज को पुनः 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 चबा चबा कर मजा है। चवन्नी का सर्कस मैंने बताया था ना आपको, चवन्नी वाला सर्कस, वो चवन्नी का सर्कस बोलते हैं, चवन्नी का सर्कस, अरे वाह इतना सस्ता सर्कस। मैं भी जाता हूँ अंदर जाते हैं तो रिंग मास्टर चवन्नी का सर्कस करेगा, ले यहाँ से एक, वहां से एक, चल बाहर। दूसरे दरवाजे से बाहर आता है, बाहर लोग खड़े रहते हैं, ये कैसा था सर्कस, हमने सुना बहुत मजा आता है उसमें, बहुत, अरे क्या बताऊं तेरे को, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। जो इस सर्कस में नहीं गया उसका जीवन बर्बाद है, उसको पक्का सर्कस में जाना चाहिए। ये संसार में चल रहा है ना। इतना पीटने के बाद भी लोग वही वापस बोलते हैं कि ये जगत कितना अच्छा है, ये सिनेमा, मूवी, ये थिएटर, ये भौतिक जीवन, ये संसार, परिवार कितना अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है जब तक उसे भगवान से ना जोड़ा जाए। सारी चीजें, सारे वस्तुएं, सारे व्यक्ति हमारे केवल क्लेश के कारण बनेंगे जब तक हम उसे कृष्ण से संपर्कित नहीं करते। फिर वही परिवार, वही घर हमारे मुक्ति का कारण बनेगा जब वो कृष्ण से संपर्क में आएगा। हमें ये नहीं कहा गया कि परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, संसार छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ने का, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ बना रहेगा वैसे के वैसे। जहाँ जाना है जाओ, लंदन जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या मुंबई में रहना है, जो करना है करो, लेकिन कृष्ण से संबंधित करो। इसके लिए सिंपल तरीका प्रभुपाद ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु की फॉर्मूला।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शायद कोई पूछे कि फिर कैसे हो सकता है भक्त हो, कोई प्रश्न पूछेगा ना, आप बोल रहे कि कैसे भक्त नहीं बन सकता हो ऐसे। प्रहलाद महाराज कहते बन सकता है, एक फॉर्मूला उसके लिए कहते हैं नैषाम मतिस्तावत् गुरु कर्माग्री महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक वो महापुरुषों के चरणों की धूल अपने माथे पर नहीं डालेगा तब तक वो भगत नहीं बन सकता। इसका अर्थ ये है कि जब तक हम नम्र होकर ये समझे संसार में कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ, पागल हूँ, भले मेरा डिग्री पीएचडी रहेगा, मैं एमबीए किया हूँ या डॉक्टर बना हूँ या जो बना हूँ, मैं बड़े कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, एक नंबर का मूर्ख हूँ। जब भगवान की भक्ति के बारे में जानने का विषय आएगा तो मुझे कुछ भी पता नहीं। और हम इस प्रकार जब गुरु को शरण में जाएंगे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनम्। तो ये ज्ञानी व्यक्ति हमको ज्ञान देंगे, भक्ति प्रदान करेंगे। भक्ति हमारे प्रयास से नहीं मिलती है, भक्ति गुरु और वैष्णव की कृपा से मिलती है। इसलिए अध्यात्म का पूरा सार केवल एक ही है, गुरु और वैष्णव की सेवा करना। दैट्स इट। कृष्ण की सेवा बाद में आती है, पहले सेवा आती है गुरु की, वैष्णव की। जब गुरु और वैष्णव की सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करने जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, डिजास्टर। इस प्रकार जब सारी सूचनाएं देते हैं तो एक्चुअली इस समय हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, आज हम लोग 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेंगे, ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल लेक्चर है, फर्स्ट टाइम पूरा करना है ना। तो जब ये प्रयास करते हैं कौन, हिरण्यकशिपु, इतना सुनने के बाद तो अभी तो उनको सहन नहीं होता, पकड़ो इसको, तुरंत इसको मारो यहीं कहीं। तो आपने वो कथाओं में सुना होगा, प्रहलाद को फिर लेके जाते हैं, गरम गरम तेल, बॉइलिंग किया हुआ कढ़ाई, प्रहलाद को कुछ नहीं होता, हाथी के पैर के नीचे कुचलने बेचते कुछ नहीं होता, बड़े बड़े जहरीले सर्पों के समूह में डालते हैं, कुछ नहीं होता। एक जगह पे वर्णन आता है खाली कि प्रहलाद महाराज को जब जितने भी जगह पे प्रहलाद महाराज के ऊपर अटैक होता है, प्रहलाद महाराज केवल अपना नाम स्मरण जारी रखते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कवच बन जाता है वो महामंत्र उनके लिए। सिर्फ प्रहलाद महाराज एक जगह पे उनको दुख होता है कि एक बार उनको पर्वत के चोटी के ऊपर से फेंकने के लिए रेडी हो जाते हैं, मारने के लिए। तो उस समय प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और ये एक विचार करने की वजह से उनको दुख होता है। देखिए कितना ये रिफाइंड कल्चर है एक भक्त का। जब पर्वत की चोटी से उनको फेंका जाता है, निश्चित भगवान नीचे थे उनको कैच करने के लिए, भगवान को एकदम पकड़ने के लिए नीचे थे। लेकिन कुछ समय के लिए प्रहलाद के मन में विचार आता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इससे उनको दुख आता है। मैं क्यों सोचा ऐसा, मुझे क्यों विश्वास नहीं हुआ कि भगवान मुझे बचाएंगे, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। यानी कि देखिए अध्यात्म का लेवल देखिए क्या है। लेकिन हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसके आगे इंपॉर्टेंट स्टेज है, मैं केवल आत्मा नहीं हूँ, भगवान का सेवक हूँ। केवल ये जानने से कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। वो प्रिलिमिनरी स्टेज है, किंडरगार्टन। आगे बढ़ना पड़ेगा ना, भक्त बनना पड़ेगा, तभी हमारा मुक्ति होगा। इस प्रकार कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर हिरण्यकशिपु, उसका तो टेंशन बढ़ जाता है। अभी उसको लगता है कि ये मेरा काल बनेगा। तो वापस शंडा वर्ग कैमरा उधर फोकस होता है। ये कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम इसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, इसको लेके जाते हैं। अहोबिलम में जाएंगे आप तो वहाँ पाठशाला है प्रहलाद महाराज की, अहोबिलम में, और एक यात्रा अहोबिलम बड़ा जबरदस्त जगह है, वहाँ पर प्रहलाद महाराज की पाठशाला। तो ये एक्चुअली जब उनको लेके जाते हैं वहाँ पे, वापस शंडा वर्ग ट्राई करते हैं और पूछते हैं, प्रहलाद ये सब कहाँ से सीखा तूने, और ये सब कौन तुझे बताता है। प्रहलाद लंबा प्रसंग है वहाँ पे, लेकिन जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, जब स्कूल चलता है इस प्रकार, तो प्रहलाद महाराज स्कूल में क्या करते हैं, बीच बीच में जब ब्रेक मिलता है ना, छुट्टी होता है प्रसाद के लिए,
10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। आज हम 10-15 मिनट थोड़ा हल्को 15 मिनट्स वी आर गोइंग लिटिल लेट, क्योंकि वो प्रसंग पूरा होगा नहीं, तो आधा अधूरा कथा रहेगा तो फिर इन लोगों को आनंद नहीं आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग हैं मेरे साथ, सुखी है कि नहीं आप लोग? हवा सबको आ रही है? मुझे भी आ रही है। अरे यार, तो ये प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, ब्रेक जब होता है आधा घंटे का, ये सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, बोलते इधर इधर। जनरली हम लोग को ब्रेक में तो क्या करते हैं, खा पी के मजा करते हैं और बचा हुआ टाइम मोबाइल घुमाएंगे, कुछ करेंगे। प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे, उनके टाइम में मोबाइल नहीं था। तो बच्चों को बोलते इधर इधर बैठो इधर। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो बच्चे बोलते प्रहलाद ये सब क्या सिखा रहे हो हमको, हम तो अभी बालक हैं, अभी हमारा उम्र क्या है, खेलने का है, अभी हम खेलेंगे। क्या खेलते हैं आप लोग, कंचिया खेलते हो, क्या खेलते हैं आप, गिल्ली डंडा खेलते हैं, आजकल पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, मोबाइल खेलते हैं सब लोग। मतलब गेम भी ओरिजिनल नहीं है, भ्रामक, इल्यूजरी। मतलब ओरिजिनल गेम भी खेलने को मिलता है इन लोगों को। तो प्रहलाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुनो मेरी बात। प्रहलाद कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थम। कहते हैं देखो, मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है और हमारी कब मृत्यु आएगी किसी को मालूम नहीं। इसीलिए बचपन से ही हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करनी। आप बोलेंगे हमारा बचपन तो गुजर गया, हम तो बूढ़े हो गए अभी। प्रभुपाद कहते हैं या तो बचपन से, गीता के पर्वत में कहते हैं, तो बचपन से, या फिर अभी जब मालूम पड़ा आपको कि अरे भक्ति को दुर्लभ है, तुरंत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए जो भी लोग इस कोर्स में आते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब जब नहीं करते हैं, वो लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेकिन उनका मूल्यवान समय जा रहा है जीवन का। जब नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, लेक्चर से उद्धार होगा नहीं होगा। लेक्चर इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जप करें, ताकि मैं जप करूं, ये उसका उद्देश्य है, राइट। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो, ये मत सोचो कि जीवन में बहुत टाइम है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम सबको पता है कि हम मरेंगे, बराबर, किसको गारंटी है कि हम मरेंगे नहीं, सबको मालूम है ना मरेंगे, लेकिन ये भ्रम रहता है कि मरेंगे लेकिन अभी नहीं मरेंगे। सब यही सोचते हैं, अरे मरेंगे, बहुत टाइम है यार अभी मरने के लिए, अभी 50 साल बाकी है, 60 साल। प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो, मनुष्य अपने जीवन में किस तरह से जीवन का समय बर्बाद कर रहा है। वो कहते हैं पुंसो वर्षशतम हयुस्तम। पुंसो मतलब क्या, मनुष्य, वर्षशतम मतलब क्या, 100 साल। इंसान के कितने साल है जिंदगी के, 100 साल कोई जीता नहीं है आजकल, लेकिन एज्यूम कर लो कि 100 साल हम जीते हैं, ठीक है। वो कहते हैं निष्फलम यदसो रात्र्यम शेते अंधम प्रापितस्ततम। जिंदगी के 50 साल तो सोने में ही जाते हैं भाई, कम से कम 8 घंटा तो हमारा नींद होता ही है, बचा 2-3-4 एक्स्ट्रा घंटा हम लोग गाड़ी में, बस में, ट्रेन में कवर कर लेते हैं। कुछ लोग लेक्चर में